Hello students, I am your GK teacher, Nausheen. First of all, I introduce to you your GK book, Exploring Nation, a book of general knowledge with current affairs. Okay, kids, you have seen your book. Now let's start with page number 6. Banking matters. Banking matter. Yes, I think surely you know about banking. Today we will discuss about some important feature of banking. आप सब बैंकिंग के बारे में जानते हैं, बैंक में जाते हैं, बैंकिंग में हम ट्रांजैक्शन करते हैं और बहुत सारे अदर वर्क हमारे बैंकिंग के थ्रू होते हैं. तो टुडे वी विल टॉक अबाउट दैट. What are the main or important features of the banking? Now we discuss about Reserve Bank of India. You heard about the name of Reserve Bank of India? Yes, RBI. Reserve Bank of India is the central banking institution of our country. यानी मेन बैंक जो है हमारी पूरी इंडिया का, हमारी कंट्री का कौन सा मेन बैंक है? सेंट्रल बैंक है RBI, Reserve Bank of India. It is responsible for issuing currency, financial policies, and foreign exchanges. It means our economy is most probably depend upon RBI. So it is very important pillar of our economy. We can say banking is one of the most essential and important factor in our life. It provides us a comfortable economic status. Okay, do you understand about banking and what is the Reserve Bank of India? Okay, now we will start with a traveler's check. Do you heard about the traveler's check? Yes or no? Let I tell you. It is a fixed amount check in a currency of your choice. ये फिक्स्ड अमाउंट होता है करेंसी का. हम जिस कंट्री में भी ट्रेवल करते हैं वहां हम ट्रेवलर चेक को यूज कर सकते हैं. हमारे जो मनी होती है वो वहां की करेंसी में कन्वर्टेड हो जाती है. We can use a traveler check as it is safer than carrying money. Do you understand these things or these terms? Okay, that's great. Now we talk about KYC. Do you heard about KYC? Yes or no? Okay, I tell you, KYC means know your customer. It is a process for identifying and getting information about a person. KYC से जब आप बैंक में जाती हैं अपना अकाउंट ओपन कराने तो वहां पर आपकी KYC की जाती है. दैट मीन्स आपकी पूरी इंफॉर्मेशन डिजिटली फाइंड आउट की जाती है. इन दिस चैप्टर वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द डिफरेंट टर्म्स जस्ट लाइक सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड. ओके, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ bank or banking. Okay, now we will start with our question answer. Okay, write them in your GK copy very neatly and fine writing and learn them carefully. Okay, which term I tell you? I have a question on them. Question number 1. Write a short note on Reserve Bank of India. यहाँ Reserve Bank of India के लिए आपको short note लिखना. I tell you about it very well, but I again explain. It is a central banking institution of India, which is responsible for issuing currency, financial policies, and foreign exchanges. जो आपके रिजर्व बैंक का काम है वो फॉरेन एक्सचेंजेस को मैनेज करना है,
फाइनेंशियल पॉलिसीज को डिसाइड करना और करेंसी जो हमारी कंट्री में मनी चलती है, करेंसी चलती है, उसे इशू करना है। राइट डाउन वेरी केयरफुली, सी वेरी। क्वेश्चन नंबर 2, what do you mean by traveler's check? Okay, your answer is traveler's check is a fixed amount check in a currency of your choice. When a person is in a different country, can use it as is safer than carry currency. हम अपने साथ मनी, पैसे रख के ले जाएं, उससे ज्यादा सेफर क्या है? हम अगर अदर कंट्री में जाते हैं तो ट्रैवलर चेक का यूज हमें करना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स एवरी टर्म एंड क्वेश्चन आंसर्स? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइंड KYC. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू KYC मीन्स नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जानना। कोई बैंक में अगर आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं, ओपन कराने जाते हैं, तो वहां पे सबसे पहले आपकी KYC की जाती है। It is a process for identifying and getting information about a person. It is important while opening a bank account. Read out questions and their answer very carefully and then write down in your notebook. Now we have the question number 4. What is saving account? A saving account is used to deposit money in order to save and earn interest on. One can withdraw the money anytime. सेविंग अकाउंट क्या होता है? एक डिपॉजिट होता है, हमने थोड़े से पैसे अपने पास करे और उसे जाकर हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। सेव मनी को हमने डिपॉजिट किया और उस मनी पे हमें एक इंटरेस्ट मिलता है। उसे हम किसी भी टाइम, किसी भी वे से, चाहे डायरेक्ट जाके हम उससे विड्रॉ करें या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी डिफरेंट वे से हम सेविंग अकाउंट से अपनी मनी को जैसे हमें जरूरत है हम उसका यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन फिक्स्ड डिपॉजिट. A fixed deposit is where you deposit your money for a fixed period of time on which you receive a fixed rate of interest. फिक्स्ड डिपॉजिट जो है वो सेविंग अकाउंट से डिफरेंट है। इसमें हम मनी को डिपॉजिट करते हैं फिक्स्ड टाइम ऑफ पीरियड के, 2 ईयर, 1 ईयर, 5 ईयर, डिपेंड करता है आपका क्या है। उस मनी को आपने डिपॉजिट कर लिया, उसे आप टाइम टू टाइम नहीं निकाल सकते हैं, विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इस मनी को आप जैसे 1 ईयर के लिए आपने इसको फिक्स किया तो आफ्टर 1 ईयर यू गेट द मनी विद द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। उस मनी पर एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है। आपने सपोज कुछ अमाउंट जैसे 40,000 आपने डिपॉजिट किया है तो उस पर आपको और पैसे प्लस करके मनी आपको मिल जाएगी। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6. Write the difference between debit card and credit card. Do you know about the debit card or credit card? You use it or not? Your parents are use it. So you have to see here debit card. It can be used to make payment electrically. हम लोग जाते हैं शॉप पर और अपना डेबिट कार्ड देते हैं और हमने जितना परचेज किया होता है उतने मनी हमारी डिडक्ट हो जाती है हमारे बैंक अकाउंट से। क्रेडिट कार्ड इट फंक्शंस लाइक अ डेबिट कार्ड। जैसे डेबिट कार्ड फंक्शन करता है वैसे ही इसमें भी मनी डिडक्ट हो जाती इलेक्ट्रिकली, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम। इन डेबिट कार्ड मनी डिडक्टेड फ्रॉम पर्सन्स अकाउंट इमीडिएटली अपॉन परचेज। जैसे ही हमने सामान खरीदा और अपना कार्ड लगाया एट ए टाइम हमारी मनी डिडक्ट हो जाती है, कट जाती है हमारे अकाउंट से। हाउएवर in credit card the money is not deducted from person's account immediately. फौरन अगर हमारे पास मनी नहीं भी है हमारे अकाउंट में फौरन नहीं कटती है। जो बिल हमारा प्रेजेंटेड होता है वो आफ्टर 30 डेज के बाद बैंक हमें बिल प्रेजेंट करते हैं। 30 डेज के बाद हमारी मनी क्रेडिट कार्ड में डिडक्ट होती है। ओके स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, ऑल द क्वेश्चन आंसर? यू कैन राइट ऑल द क्वेश्चन आंसर केयरफुली। 1, 2, 3, 4, 5, 6. These 6 question answer
is for you class 5th. This is your GK work for today. Thank you.